جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور افغانستان میں جاری کشیدگی کا کیا حل نکلے گا؟ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ قطر میں ہونے والے مذاکرات کے کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا دونوں ممالک میں امن قائم ہو سکتا ہے یا اس میں مزید تیزی آئے گی، کشیدگی مزید بڑھے گی؟ اس وقت سرحدات بالخصوص بارڈرز کی کیا صورتحال ہے؟ آمد و رفت، تجارت وغیرہ سب کچھ بند ہے۔ ان تمام معاملات پر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ 6 دن پہلے افغانستان نے مختلف اطراف سے پاکستان پر حملے کیے، جن میں 23 سیکیورٹی اہلکار اور کچھ عام سیویلین اس میں شہید ہو گئے تھے، جبکہ اس سے زیادہ اس میں زخمی ہو چکے تھے۔ جبکہ پاکستان نے دعویٰ کیا کہ افغانستان میں انہوں نے دہشت گردوں، داعش اور ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جن میں 200 سے زیادہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اب اس دوران افغانستان کی جانب سے اپیل کی گئی تھی کہ سیز فائر کی اپیل کی پاکستان سے، اور انہوں نے اپنے فورسز کو بھی حملوں سے روک دیا تھا۔ تاہم اس وقت پاکستان نے ان کی سیز فائر کی اپیل مسترد کی تھی اور اپنے حملے جاری رکھے ہوئے تھے۔ تاہم اس دوران سعودی عرب، قطر، یو اے ای اور ایران کی جانب سے دونوں ممالک کے ساتھ رابطے کیے گئے، دونوں ممالک کو تحمل کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی اپیل کی گئی، اور اس کے بعد پاکستان نے 48 گھنٹوں کے لیے سیز فائر کا اعلان کیا۔ تاہم اس دوران بھی وہاں سے خبریں آئی کہ پکتیکا میں پاکستان نے کارروائی کی ہے، جن میں کچھ کھلاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تاہم سیز فائر یہ اس طرح پاکستان کی حکومت نے باقاعدہ طور پر جو دوبارہ اب سیز فائر ہو گئی ہے، اب قطر میں دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس دوران بھی سیز فائر کے اعلانات کیے گئے ہیں۔ تو لیکن اس دوران بھی آج بھی افغانستان کے صوبہ پکتیکا میں سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے، اور وہاں پر 60 دہشت گردوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے، جن میں 8 کمانڈرز بھی بتائے گئے ہیں، جن میں کمانڈر صدیق اللہ داوڑ، کمانڈر فضل الرحمان، جو کہ حافظ گل بہادر یہ تمام حافظ گل بہادر گروپ کے سمجھے جانے جاتے ہیں کہ ان کے گروپ کے ہیں، اور یہ جو فضل الرحمان ہے یہ گل بہادر کے چچا بتائے جاتے ہیں۔ جبکہ اس میں کمانڈر مقرب، کمانڈر قدرت اللہ، گلاب عرف دیوانہ، رحمانی، عادل، عاشق اللہ، فرمان، الیاس، اکرم، غازی مدیحیل اور کمانڈر یونس اس میں شامل ہیں۔ یہ آج کی تازہ کارروائی ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سیز فائر ہے اس کے دوران مطلب ٹاک فائٹ مذاکرات بھی جاری ہے اور فائٹ بھی جاری ہے۔ تو مذاکرات، اب بات یہ ہے کہ چونکہ اب دونوں ممالک کی نظریں وہ قطر کی طرف ہے، دوحہ میں جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں کہ اس سے کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا۔ ان مذاکرات میں جو پاکستان کی جانب سے خواجہ حسف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، جو وزیر دفاع ہے، کہ وہ اس میں شریک ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان سے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اور کچھ عسکری قیادت کے حکام بھی ان کے ساتھ ہوں گے متوقع طور پر۔ جبکہ دوسری جانب سے جو افغانستان کے وزیر دفاع ہے ملا یعقوب، اور ان کے ساتھ سراج الدین حقانی کے قریبی ساتھی کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان کی وفد میں شامل ہے۔ یہ دونوں وفود یہ دوحہ میں مذاکرات کریں گے۔ اس میں سیکیورٹی حکام کی شرکت اس لیے بھی یقینی ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان کی جانب سے اس میں ان کو کچھ شواہد، کچھ ثبوت فراہم کیے جائیں گے کہ وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ افغانستان کی زمین دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ اس حوالے سے کل بھی خواجہ آصف نے کچھ اعداد و شمار پیش کیے تھے، تو ان کی روشنی میں اگر ان کو کچھ تفصیلات فراہم کی جائے، جن میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نے اور افغانستان کے درمیان 200 سے زیادہ بارڈر فلیگ میٹنگ ہو چکی ہے، جبکہ 10 میٹنگ جی سی سی کے لیول پر ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ 200 انٹیلیجنس میمو افغانستان کے ساتھ شیئر کیے گئے، جن میں
अब उनको बताया गया कि दहशतगर्द यहाँ पर मौजूद है, इलाका भी बताया गया, उनकी मूवमेंट बताएगी, उनके पास क्या असलहा है, वो क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें उनके साथ शेयर की गई। इसके अलावा 800 से ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट किए गए पाकिस्तान की जानिब से कि वो ज़मीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और 180 फॉरेन ऑफिस लेवल के प्रोटेस्ट किए गए। और जो इसमें दो बातें, मतलब एक तो ये कि पाकिस्तान के वजीर खारजा ने वो 5 दफ़ा वो अफगानिस्तान के विजिट कर चुके हैं इस सिलसिले में कि उनके साथ मुज़ाकरात करे और उनको आमादा करे, अफगानिस्तान को समझाया जाए। उन्होंने ये भी कहा, एक बड़ी बड़ी बात उन्होंने की कि 3 दफ़ा चाइना ने अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की, लेकिन जो पाकिस्तान का मुतालबा है और जो इससे पहले दोहा में जो मुआहिदा हुआ था उसके तनाजुर में जो अफगानिस्तान ने प्रॉमिस की थी कि यहाँ पर दहशतगर्दों के ठिकाने नहीं होंगे, अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें भी ये बताया गया है कि अफगानिस्तान की हुकूमत दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। उसमें भी और भी आदाद शुमार है कि 6000 के करीब दहशतगर्द है, उनके पास जो है जो नेटो के फोर्सेस का असलहा है, और ये भी कि वहां पर कुछ कैंप्स भी है जो दहशतगर्दों को तरबियत देते हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने इतनी दफ़ा कोशिश की अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के दौरान के उनको समझाया जाए कि वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, उनके सरहदात, उनके इलाके जो है, उनकी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। अब जो कतर में मुज़ाकरात होंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। तो जिस तरह ये जो मैंने आपके साथ आदद-ओ-शुमार शेयर किए कि इसके बावजूद अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो कतर मुज़ाकरात के बाद क्या नतीजा निकल सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ से भी कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकलेगा जब तक अफगानिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के इस एक जो ग्रीवेंसेस है, जो कंसर्न है पाकिस्तान के कि उनकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पर दहशतगर्द मौजूद है, उनके खिलाफ तो उन पाकिस्तान के साथ उनके खिलाफ या अफगानिस्तान हुकूमत खुद कार्रवाई करे, या पाकिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर कार्रवाई करे, या पाकिस्तान को इजाज़त हो कि वो वहाँ पर कार्रवाई करे, या तो दोहा में इन तीनों में से किसी एक बात पर इत्तेफाक होगा। नहीं तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, इससे पहले भी DGSPR कह चुके हैं कि ये अब वो स्टेट नहीं है, अब ये हार्ड स्टेट बनेगा। मतलब जो भी अदम इस्तेहकाम यहाँ पर पैदा करने की कोशिश करेगा उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और जो चंद दिन पहले पेशावर में DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें भी उन्होंने वाजे किया कि ये स्टेटस को जो है ये अब मजीद नहीं चलेगा। स्टेटस को क्या है कि तालिबान दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात, उनके लिए नरम रवैया, तो कहते हैं कि अब ये स्टेटस को नहीं चलेगा, अब वो पॉलिसी चेंज हो चुकी है, अब इनके साथ जो है आहनी हाथों से निमटा जाएगा और इनको जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो पाकिस्तान की पॉलिसी तो अब क्लियर है इस हवाले से कि इनको किसी भी सूरत जो है इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब उस इजलास में अगर इन चीज़ों में से किसी पर भी इत्तेफाक हो सकता है, हुआ तो कुछ इसमें नरमी आ सकती है, नहीं तो जिस तरह हमने देखा कि सीज़ फायर के बावजूद भी ये कार्रवाइयाँ जारी है, तो ये कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। और जो मुज़ाकरात होने हैं कतर में, उसमें जो डेलीगेशंस है वो चूँकि कतर में इसलिए भी ये मुज़ाकरात हो रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो अब बैठी है वहाँ पर, ये दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में ही ये हुकूमत आई थी और उसके नतीजे में यहाँ से नेटो फोर्सेस चली गई थी, और उस मुआहदे में भी अफ़गानिस्तान ने ये कमिट किया था कि यहाँ पर ये सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, यानी दहशतगर्द ये ज़मीन अफ़गानिस्तान की सरजमीन नहीं इस्तेमाल करेंगे, और बिलखुसूस किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ जो है उनकी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। तो अब जो है वो उसके इसमें सिक्योरिटी हुक्काम इसलिए भी होंगे इस मीटिंग में पाकिस्तान की तरफ से कि उसमें वो तमाम सबूत उनको फराहम किए जाएंगे जो पाकिस्तान दावे कर रहा है कि वहाँ दहशतगर्द मौजूद है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके आम लोगों की ज़िंदगी ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा जो है वो अफ़गानिस्तान मुतासिर हो रहा है, क्योंकि इस वक्त
तमाम जो खैबर पख्तूनख्वा की सरहदात है, जो बॉर्डर है, वो बंद है। आमद व रफ्त बिल्कुल बंद है, मुनक़ता है। तिजारत की जो गाड़ियाँ हैं सैकड़ों की तादाद में बॉर्डर के करीब खड़ी है, और हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ जो है इस वक्त दोनों जानिब खड़ी है, जो सामान से लदे हुए है, जिनमें सब्जियाँ भी है, फ्रूट भी है, ड्राई फ्रूट भी है, उसमें दीगर खुराक की अशिया भी है। वो सारी चीज़ें जो है अब वो वहाँ पर स्टक हो चुकी है। तो ये जो है ये इसके मतलब, और ये भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में चीज़ें जो यहाँ से जाती है वो वहाँ पर बहुत महंगी हो चुकी है। जो चीज़ें जो सामान वहाँ से आता है उसके यहाँ पर उसके रेट बढ़ चुके हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अफगानिस्तान ज़्यादा मुतासिर होगा, क्योंकि उनका इन्हिसार ही इन रूट्स पर है, और बिलखुसूस पाकिस्तान के इन रूट्स पर उनका इन्हिसार है। और इस दौरान जो है चूंकि पैदल आमदोरफ्त भी बंद है, गाड़ियां भी बंद हैं, तो चमन के जरिए जो है, चमन के रास्ते, बलूचिस्तान के रास्ते पैदल आमदोरफ्त या मुहाजिरीन की वापसी के लिए जो है आर्जी तौर पर वो उनको इजाज़त दी जा रही है। बाकी यहाँ पर जो है पैदल आमदोरफ्त भी बंद है। अब अफगान मुहाजिरीन के हवाले से भी पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है। वो अब जो ताज़ा वो है, जैसे मैंने कहा कि हार्ड स्टेट वो बनते जा रहा है। इन्होंने पाकिस्तान खुद कह रहा है कि ये अब हार्ड स्टेट बनेगा, मतलब किसी के लिए रियायत नहीं होगी। तो इस तरह अफगान मुहाजिरीन के लिए भी इस दफ़ा कोई रियायत नहीं है। पाकिस्तान ने वाज़ेह ऐलान किया है कि सिर्फ वो अफगान लोग पाकिस्तान आ सकते हैं, या यहाँ पर वो अपना कारोबार या यहाँ पर रह सकते हैं, जिनके पास वीज़ा होगा। इसके अलावा जो है कोई भी कार्ड जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। यानी इस हवाले से, और जो यहाँ पर कैंप हैं, जो कैंप यहाँ पर उनके लिए कायम किए गए थे, उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। और इस दौरान जो है बलूचिस्तान के यहाँ पर अफगानिस्तान के जो कौंसल जनरल हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमने उनके लिए अपने अफगान महाजरीन के लिए इंतजाम किए हैं, और वो वापस अपने मुल्क जो है आ सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया भी किया, और साथ में ये भी कहा कि उनका पाकिस्तान से कोई गिला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन गुज़िश्ता 40-50 साल से ये अफगान महाजरीन की मेहमान नवाजी कर रहा है। लेकिन अब जो है हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि मज़ीद जो है उनकी यहाँ गुंजाइश जो है नज़र नहीं आ रही। तो ये, और लेकिन साथ में दोनों ममालिक के तलखियाँ भी उरूज पर पहुँच चुकी है। वहाँ से भी अब हमारी हुकूमत को एक मौजूदा रिजीम कहा जा रहा है, पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान की हुकूमत को अफ़गान रिजीम कहा जा रहा है। और साथ में ये भी जो है इसके भी असरात जो है शुरू हो गए हैं कि अफ़गानिस्तान में अगर ये मौजूदा सेटअप पाकिस्तान के इस कंसर्न को दूर नहीं करता, तो वहाँ पर रिजीम चेंज भी लाई जा सकती है। ये फिर अगली मरहले में देखा जाएगा कि आया अगर दूसरा रिजीम, पहले ये कि आया दूसरा रिजीम चेंज, मतलब ये रिजीम चेंज हो सकती है, दूसरा जो आएगा क्या वो पाकिस्तान के कंसर्न को दूर करेगा या नहीं, ये आइंदा आने वाले दिनों में देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया।